आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Good morning to all. Myself, Amara Lasari from that class. I am playing a role of engineer. I design and make machines by using special tools and ideas like casted toys. Thank you. Good morning to all.
myself, Aslan from Fred. I am playing a role of teacher. My duty is to teach the students. Therefore, thank you. Good morning to all. Myself Alifa from Fred class. I am playing a role of baker. I am good, tasty and sweet cake. Thank you. All my girls from Fred class. I am playing a role of police officer. I wear khaki uniform and cap. I am brave and strong. Thank you, Jerry. Good morning to all. Myself Jessica from class 8. I am playing a role of I work hard to a super stand and healthy and happy. Thank you. Good morning to all my friends. From prep class, I am playing a role of soldier. I fight for my country and with many sacrifices. Thank you. Jai. Good morning to all. My name is Hussein. I am in prep class. I am playing a role of lawyer. Our lawyer gives advice on the legal matter. The job of lawyer is to argue on the basis of plaintiff. Thank you. Good morning everyone. My name is Sadna Sribek from prep class. I am playing a role of architect. I design all kinds of buildings. Thank you. They are the soul of our nation, ensuring freedom, equality and justice for all. Let's cherish and protect them. Thank you. Future bright, do your duties, know your right. Future bright, do your duties, know your right. हमारा नाम अलीफा है, मुस्लिम है, हमारी मादी ज़बान उर्दू है। मैं गुजराती हूँ, हमारा नाम अबू सच है।
करेंगे। जय हिंद। इन्कलाब जिंदाबाद। मैं मोहम्मद सिफू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बार देखा दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद। मेरा नाम सरोजनी नायडू है। मेरा जन्म 13 फरवरी 1889 हैदराबाद के बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। मुझको बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। 12 साल में ही मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। शुक्रिया। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे मुझे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। जब मुल्क आजाद हुआ तो मैं हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम बना। मेरे को गुलाब का फूल बहुत पसंद है। जय हिंद। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मेरा पूरा नाम भीमराव रामजीत अम्बेडकर है। मैं हिंदुस्तानी आइन का बापू। जय हिंद। I am Saad Ahmed from Standard 3rd. I am from West Bengal. West Bengal is known for Rabindra Sangeet, the Ganga River and rich literature. Bengal with your Bangsha Hoshar Bhumi. Thank you. Good morning everyone. I am Abdul Aziz from Standard 3rd. I am from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is famous for its rich culture, has beautiful temples and delicious food. Andhra Pradesh, Shaurya Marya Sampradayam. Thank you. Good morning everyone. I am Shiksha from the Standard. I am from Gujarat. Gujarat is famous for its and run of Kutch. Apnu Gujarat, Apnu Agman. Thank you. Good morning everyone. Good morning everyone. I am Rohan Limsha from third standard. I am from Kashmir. Kashmir is famous for its breathtaking landscapes and majestic mountains. घर फिरदौस रूह ज़मीन आसमाना को। Thank you. Good morning everyone. I am Uman Shah from third standard. I am from Maharashtra. Maharashtra is known for its historical forts and beautiful landscapes. महाराष्ट्र माझे अभिमान, संस्कृती, शौर्य आणि एकताची शान. Thank you. Good morning everyone. I am Mohammed Zain from third standard. I am from Punjab. Punjab is known for bhangra gidda and delicious food like sarson da saag and makki di roti. Punjab jo ratte shod da pratik hai. Thank you. Good morning everyone. I am Mural Fatima from third standard. I am from Tamil Nadu. Tamil Nadu is famous for temples, classical dance forms like Bharatanatyam, Veeranatyam. Thank you. Good morning everyone. I am Faraz Nasir Beg from third standard. I am from Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is known for its beautiful mountains and holy place. Uttar Pradesh, Ganga, Yamuna ki shan. Thank you. मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आदरणीय अतिथि, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्राध्यापक, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में 26 जनवरी का महत्वपूर्ण स्थान है। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता के बहुत पहले अखिल भारतीय कांग्रेस ने ही 26 जनवरी को एक ऐसा प्रस्ताव पास किया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये प्रस्ताव हमारे भारत के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्रता के बाद का संविधान बना जिसके अनुसार गणराज्य घोषित हुआ, जिसका आधार लोकतंत्र है। ब्रिटिश राज्य में सारा देश प्रांतों में बटा था। स्वतंत्रता में सारे प्रांतों का राज्य नाम दिया गया। सारे राज्यों के प्रतिनिधियों से संसद बनी और भारत एक शक्तिशाली देश बना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस
दिवस बड़े समारोह से मनाया जाता है। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इतना कहकर मैं अपने विचार समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। के वो आए और हज़रत सलाम को खूबसूरत सा वाक़या पेश करे। बगैर मुताला फरमाइए। इन्होंने रोशनी से नफरत की और अंधेरे का इंतखाब किया। इन्होंने रोशनी से नफरत की और अंधेरे का इंतखाब किया तो खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। आज हम ऐसे रसूल का वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो हमारे पहले रसूल है। अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान शरीफ में एक सूरह भी नाजिल किया, सूरह नूह, जो कि सूरह नंबर 71 है। इसी तरह उनका वाक़या कुरान में 43 मरतबा आता है। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हर मज़हबी किताब में मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी तमाम औलादें इस्लाम पर कायम रही और वो लोग अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले अमाल करते रहे और राहत व आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। तो यही बात इब्लीस को गवारा न हुई और उसने एक चाल चली और लोगों से कहा कि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो क्या वो तुम्हें याद नहीं आते? उन्होंने कहा वो हमें बहुत याद आते हैं और हम उनकी याद में बेचैन हो जाते हैं। तो इब्लीस ने कहा क्या मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं? अच्छे बुजुर्गों की तस्वीरें या मूर्तियां बनाओ और रोजाना उनको देखा करो, जिससे तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी और तुम तुम्हारे आने वाली नस्लों में उनकी अच्छाइयों का तज़किरा कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नस्लें भी उनके कारनामे को याद रखेगी। उन लोगों को इब्लीस की बताई हुई तरकीब बहुत अच्छी लगी और जब भी उनमें का कोई नेक बुजुर्ग मर जाता तो वो उसकी फौरन मूर्ति बना लेते। चंद ही दिनों में बहुत सी मूर्तियां बन गई और लोग धीरे धीरे उनकी इबादत करने लगे और उन बुतों से मांगने लगे और अल्लाह की इबादत छोड़ दी। लोग अंबिया साबिक़ीन यानी अव्वलुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को अक्सर भुला चुके थे। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने उनकी काफिराना हरकतों के सबब उनसे जिहाद भी किया, जिससे वक्ती तौर पर फायदा हुआ और लोग वापस दीन हक़ की तरफ पलटे। लेकिन हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद औलाद आदम की नाफरमानी और शैतान की मक्कारी व अय्यारी ने कुर्रे अर्ज़ को कुफ्र, शिर्क, बुराई व बेहयाई के गलाज़तों से भर दिया है। इब्लीस अपनी कारकिर्दगी पर बहुत खुश है और उधर मुसलमानों में फरिश्ते अहले ज़मीन की हालत पर और शैतान के मकर फरेब और कामयाबी पर हैरान भी है और परेशान भी है। उनकी निगाहें बार बार बैतुल मामूर की जानिब उठती है और वो मुंतज़िर है कि अल्लाह कब उनकी तबाही व बर्बादी का हुक्म नाज़िल फरमाएगा। और अल्लाह के फैसले तो बड़ी हुकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब उसकी नाफरमानी अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो वो नबी मबऊस फरमाता है और अगर नबी की बातों को भी ना माने तो कहर इलाही नाज़िल होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 साल की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएंगे। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके आसपास दरख्त भी नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, उनका काटा और एक पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक बनाते और कहते ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयत नंबर 38 और 39 में किया है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। सूरह कमर आयत नंबर 13 में इरशाद होता है और हमने नूह को उसी कश्ती में गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से, ताकि ऊपर से जब बारिश बरसे वो इन्हें नुकसान न पहुंचाए। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के ज़हूर की एक निशानी और अलामत बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने फरमाया जब ये तनूर उबलने लगे और उससे पानी उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनांचे को और जमीन पर बड़ा हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा तो हमने कहा कश्ती में हर किस्म के जोड़े दो। ओके पुस्तक तुला वाचायला शिकायला हे काय आहे? या वयात शिकणार लोक काय मानतील? इस्त्र्या घरच्या कामात तेच बऱ्या वाटतात. हे घ्या पुस्तकाने, जा तुम्ही.
अगं बघ ना, खूप ताप आलाय त्याला. अगं त्याला भूक चालू झाली वाटतं, त्याला बाबाकडे घेऊन जाऊ. खूप चालू उपाय करतात. काय झालं? बघा ना बाबा, माझ्या बाळाला काय झालं? खूप तापलाय तो. अरे बापरे, तुझ्या बाळाला विरच्या भूताने झपटला आहे. तुला बळी द्यावा लागेल ढकलाचा. हो बाबा, मी वाटेल ते करेल माझ्या बाळासाठी. तू काय करा नको ना, विद्या आम्ही जातो, तू फक्त पोहोचलं पाहिजे. हे जे अंगारा तुझ्या बाळाला डोक्यातून दोन असला. हो बाबा. अगं बाई, बाळाचा ताप अजून कमी झालाच नाही. त्याचा ताप अजून कमी झालाच नाही. परत अंगारा लावते. काय झालं सावित्री? आहे, याचा ताप कमी झालाच नाही. तुला म्हणालो होतो बाळाला डॉक्टराकडे घेऊन जा, पण तू ऐकतच नाहीस. परत अंगारा लावते. हे काय करतेस? बाळाला अंगारा लावते. हा सर्व अंधविश्वास आहे. नाही बघा ना, बाळाचा ताप कमी झाला, बाळा पण थंड झाला. आहो, पण बाळाने डोळे का बंद केले? हलत का नाही? रडत का नाही? बाळा, अरे बाळा, उठ ना, उठ ना बाळा, बाळा उठ ना. सावित्री, आता आपले बाळ राहिले नाही. हे सर्व अंधविश्वास व अडाणीपणामुळे झाले आहे. मी आता शिकेल, जरूर शिकेल, कारण पुन्हा कोणत्याही आईला अडाणीपणामुळे आपले बाळ गमवावे लागणार नाही. कुठे चालली सावित्री? शिकायला. काही लाज आहे का तुला सावित्री? आता शिकतेस, समाज काय म्हणेल, लोक काय म्हणतील? काय ग सावित्री, या वयात शिकते, तुला काय लाज वाटते का? तू आता या वयात शिकणार, बाईने फक्त चूल आणि मूल बघावे. कोण आहे? पोस्टमॅन, तुमची तार आली आहे. सावित्री, दिल्लीतून पत्र आले. तुला पुरस्कार मिळणार आहे आणि तुझा सत्कारही होणार आहे. हे तर तुमच्यामुळे शक्य झालं. आम्ही चुकलो सावित्री, तू बरोबर होतीस. सर्वांनी शिकलंच पाहिजे. चला शिकूया, साक्षर होऊया. थँक्यू. 26 जनवरी के मौके पे प्रोग्राम करना था. कल फरीदा और मैं डिसाइड कर रहे थे चीफ गेस्ट किसे बुलाएं, मेहमान खुशी से किसे बुलाएं. बहुत सारे सियासी लीडर रहते हैं शहर में, जाने माने डॉक्टर्स रहते हैं. तो हमने ये सोचा कि यहाँ से आगे हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, वर्ल्ड के हर कोने में बच्चे हैं, महाराष्ट्र में भी है, शहर में भी है, हर तरफ है, उनको इनवाइट करते जाएंगे. अचानक कल ख्याल आया, अजीज़ को फ़ोन किया मैंने और उसने कहा कि मैं आ जाती हूँ. इसके बारे में मुझे बताना है सैयदा अजीज़ा के बारे में. ये बच्ची
हमारे पास जब थी तो ये बच्ची का परसेंटेज कुछ 85 के आसपास आता था, 80, 82 या 85 एट द मोस्ट। तो उस वक्त मैडम ने पनिशमेंट करे थे डॉक्टर अजीजा को 7th 8th में, और उनके माँ बाप को बुला के बोले थे, माँ बाप खुश, नहीं बच्ची ने 82 ला ली, 85 ला ली। माँ बाप बेचारे भोले भाले, माँ बाप को मालूम नहीं रहता बच्चों की क्षमता क्या है, बच्चों का मेयार क्या है, लेवल क्या है। तो इस बच्ची का लेवल हमको मालूम था मोर देन 95 है, 98 है। तो मैडम ने पनिशमेंट किए थे। तो उसके बाद से ये उन्होंने अपनी एक तकरीर में किया था। तो उसके बाद में ये हुआ 10th टॉपर रहे, आजाद कॉलेज में एडमिशन लिए, आजाद कॉलेज में टॉपर रहे। आजाद कॉलेज में जब 12th में थे तो मैंने और एक बार इनवाइट करा था उनको वहां पे सर्टिफिकेट देने के लिए। जिनको इन्होंने सर्टिफिकेट दिए थे डॉक्टर अतीब, वो भी डॉक्टर बनी बेचारी, उससे आने वाले दिनों में बुलाऊंगा इंशाल्लाह। और उनका भाई डॉक्टर नुसरत फारूकी, डॉक्टर नुसरत, उन्हें भी बुलाऊंगा। हाँ, मुझे ये कहना था, ये आजाद कॉलेज में गए बाद में आजू बाजू ये बच्ची का कहना था कि इधर से नाथवैली बैठा है, इधर से कैम्ब्रिज बैठा है, कहीं जैन इंटरनेशनल बैठा है, सीबीएसई के सब बच्चे बैठे हैं। मैं भी, तुम कहाँ से आए? बीएफसीआई से। कहाँ है बीएफसीआई? जस्ट लाइक इंसल्टिंग कि बीएफसीआई कहाँ नहीं जानते थे वो लोग। मगर इस बच्ची ने उस जमाने में MHCET था, जैसा आज के जमाने में 12th में नीट है, MHCET था। तो उसमें इस बच्ची ने 200 में से 183 लेके आजाद कॉलेज की टॉपर बनी थी। ये बच्ची आजाद कॉलेज की टॉपर बनी थी और फर्स्ट 15th में घाटी में एडमिशन मिला था। शायद 14 नंबर पे मिला था तुमको एडमिशन। फर्स्ट 14 में घाटी में एडमिशन मिलना मामूली बात नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आजकल काफी डोनेशन हो गया है, लाखों के करोड़ों में हो गया है मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ये आज का फंक्शन तो हुआ है, मगर छोटे बच्चों को और माँ बाप को एक इंस्पायरेशन हमने दिए हैं, एक कि इनमें से हीरे निकलते हैं, ये बच्चों में से हीरे निकलते हैं अगर से सही तरबियत रही। पढ़ाना काम है हमारा, तरबियत भी चाहिए, और इसमें आप लोगों का और हमारा रोल एक साथ रहेगा तो प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर अजीजा आप तशरीफ लाए, और आने वाले दिनों में भी आप आएंगे, ये बच्चों को इंस्पायरेशन मिलेगा। अब मैं फरीदा मैडम से कहूँगा वो भी अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 जनवरी यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। सोचा हमने क्यों ना हमारे उन बच्चों को बुलाया जाए जो हमारे स्कूल से तालीम हासिल करके ऊंचे मकाम पर हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी और एक तरह से अल्लाह की तरफ का एक तोहफा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल से जो फारिग हुए हैं, नर्सरी से 10th तक जिन्होंने हमारे पास तालीम हासिल की है, वो काफ़ी ऊंचे ओहदों पर हैं। लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि हम हमारे बच्चों को ही बुलाकर, हम जैसे ये यहाँ पर अभी मेरे सामने 10th के बच्चे बैठे हैं, इनके लिए खास तौर से ये एक तोहफा है कि आप इस बच्ची को देखिए, ये भी आप ही की तरह मेरे पास एक स्टूडेंट थी, बीएफसीआई स्कूल की तालिबा थी, लेकिन मेहनत मशक्क़त करके वो कहाँ है आज। अल्हम्दुलिल्लाह घाटी में डॉक्टर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर गवर्नमेंट सीट पर इसे दाखिला मिला था। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आप बहुत तमाम बच्चों से मिलेंगे, हम उनको बुलाते रहेंगे, हर फंक्शन में हम हमारे बच्चों को ही बुलाएंगे। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, हमारे बच्चे ही हम आपको बताएंगे कि रास्ता क्या है, मेहनत का रास्ता क्या है, मेहनत का मकाम क्या है। आप पा सकते हैं मेहनत का मकाम। ये तमाम बच्चियाँ आपने देखा होगा हमारे स्कूल में कितने प्यारे बच्चियाँ हैं जिन्होंने सूरे नूह का कितना बड़ा जो पैगंबर का आपके सामने एक वाक़या पेश किया, कितने अच्छे तरीके से पेश किया। शायद आपने भी किताब में नहीं पढ़ा होगा इतना डिटेल में,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल से जो फारिग हो रहे हैं बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। और क्या है, सबका एम एक ही है, मकसद एक ही है, बच्चों ने बेहतरीन तालीम हासिल करना, बच्चों ने बेहतरीन मकाम हासिल करना। तो आपका जो मंशा है वो भी हमारा भी वही मंशा है। हम दिल से चाहते हैं हमारे तमाम बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तालीम हासिल करें, और हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा इस बच्ची की तरह आगे बढ़े। ये आपके लिए एक मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। Myself, Dr. Aziz Fatima. I am from MBBS from GMC Aurangabad, presently working at CSMS Medical College. I was a student from BFCI. I have passed my 10th standard in 2007. I was under the guardians of my respected principal Farida ma'am and President Shakir sir. I was actually whatever I have achieved, it started from the school life, because we were in the school. We were in the school, and it was our principal supervision on every student. Generally, this doesn't happen in any other schools. At my time, and also today I have observed this ma'am remember each and every student by the name. And at that time also, ma'am was specific. She knows every student's name, and that gives the student confidence that ma'am is observing him or her. And because of that, we were punctual. We were dedicated to our studies, and whatever ma'am just don't teaches us only school studies. She also teaches us the values, the principles, and respect to our elders, to our parents. And at school, it was, the environment was very it was very specific, very all the things were very on time. Actually, it was very specific. Ma'am was like, this assembly should happen on this time only, then students should be that. She was very particular about everything. She is very particular about everything, as I observed today. And it was her efforts and sir's efforts together. They both make this school, and together they inshallah continue it many more years inshallah. And whatever I am today, I am thankful to Allah. I am thankful to my parents and my dear teachers. Because of them, I am whatever I have achieved in my life. आपने बता दिया गर्ल्स किससे बॉयज से कम नहीं होते। जी, आपने बता दिया कि गर्ल्स जो है किसी से कम नहीं होते। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जो है गर्ल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपने BFCI स्कूल से टॉपर किया है? देखिए, गर्ल्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो मैम का जो गाइडेंस था हमें, मतलब हमने जो पढ़ा, हम उस टाइम पे मैम ऐसा नहीं था कि मैम सिर्फ बॉयज़ पे ही फोकस्ड है, बस ऐसे नहीं था। इक्वली, दे वर इक्वली, एज दे आर इक्वली, एज वी वर ट्रीटेड इक्वली, एंड मैम वाज एन इंस्पिरेशन। एंड these are my real genuine words, this is the truth words, whatever I am saying. मैम जो थे, मैम हमारे लिए बहुत, मतलब मैम को देख के हम इंस्पायर होते थे। मैम का जो माशाल्लाह ऑरा था, ऑरा है, और इंशाल्लाह ऑरा रहेगा। तो वो जो मैम हमको मोटिवेट करते थे, हम डरते भी थे उनसे, मतलब अभी भी जब हम डरते भी थे, लेकिन हमारा जो उनका डर हम पर बना था, उसी वजह से हम कामयाब है, उसी वजह से हम पढ़ते थे। तो वो ज़रूरी है टीचर्स का फ्रेंडली भी होना, एक डर भी होना। जैसे सर फ्रेंडली थे, मैम स्ट्रिक्ट थे, तो ये ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा था, वो उस कॉम्बिनेशन ने मुझ पर वर्क किया। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैम ने हमको ये नहीं कहा कि नहीं, क्योंकि एक चीज़ बेसिक था ना, मैम ये बोलते थे कि 10th का जो बोर्ड पेपर है वो सारे स्कूल को एक ही आने वाला है, वो सबको एक ही आने वाला है। तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक टीचर्स के एफर्ट्स और एक स्टूडेंट के खुद के एफर्ट्स होते हैं। तो मेरा रिजल्ट में मेरे मैम का भी कंट्रीब्यूशन है, मेरे खुद का भी कंट्रीब्यूशन है, मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा एजुकेशन दिया। आज जो है बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि इतने छोटे बच्चे, प्राइमरी के बच्चे, प्रेप स्टैंडर्ड के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हमें नहीं था इतना कॉन्फिडेंस उनकी एज में, उनको स्टेज फियर इतना नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जो परफॉर्मेंस थे रीजन को लेकर, स्टेट को लेकर, जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है,
ये बहुत ज़रूरी है। इतने कम एज पर बच्चों को स्टेट्स, रीजन, लैंग्वेजेस पता हो रही है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था आज का जो प्रोग्राम था, और बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है मैम जो ले रहे हैं। स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब उनका बेस ही अच्छा प्रिपेयर हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आगे की जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छी बात है, और टीचर्स ऐसे ही होने चाहिए, टीचर्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तो ही हम परफॉर्म कर पाते हैं। थैंक यू। Thanks to everyone who worked hard to organize this event and to performers their wonderful contribution. Your efforts truly made the day memorable. Thank you to every audience for your presence and support. Let's continue and uphold this value of Republic. May the tricolor of freedom dance proudly in the sky, reminding us 75 years of hope, unity and progress. Happy Republic Day. Thank you.